Hello students, this is our 19th lecture and in this lecture we will learn about the virtual base class, constructor in derived class. So here we will see the details about the detailed discussion of virtual base class and what is the purpose of it and how we will derive the constructor in the derived class or else how we use the constructor in the derived class. One more topic is containership and what is the difference between the inheritance versus the containership, that we will discuss in detail. Okay, so first of all we will start with the virtual base class. Virtual base class. So we have already learned the different types of inheritance, where hybrid inheritance creates such a issues where duplicacy of data members are getting happen. Okay, so from which class, from via which path you are going to access that data member, that will be the question. So we'll see this. We have discussed a situation which would require the use of both multiple and multi-level inheritance. Okay, so in a hybrid, what is the combination? Multiple and multi-level. Consider a situation where all the three kinds of inheritance, namely multiple, multi-level and hierarchical, are involved. Let us say the child has two direct base classes, that is parent 1 and parent 2. That means child class is derived from the parent 1 class as well as the parent 2 class, and which themselves has a common base class as a grandparent. That means parent 1 and parent 2 are derived from the grandparent. Okay, so via this indirect inheritance, a child class can have access of the data member of grandparent via parent 1 as well as a parent 2. That means in a derived class child, you are getting the duplicacy of the data which are presented by the grandparent. Okay, the child inherits the traits of grandparent via two separate parts. It can also be inherited directly as shown by the broken line. The grandparent is sometimes referred to as the indirect base class. Okay, now the inheritance by the child must cause some problems. All the public and protected members of grandparent are inherited into child twice, first via parent 1 and again via parent 2. So there occurrence a duplicacy which should be avoided. यानी पेरेंट से भी ग्रैंडपेरेंट के डेटा मेंबर्स आ रहे हैं, पेरेंट 2 से भी आ रहे हैं, तो चाइल्ड कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन से वाले से मैं ग्रैंडपेरेंट के डेटा मेंबर एक्सेस करूं. सो टू अवॉइड दिस डुप्लीकेसी एम्बिग्विटी वी विल यूज द वर्चुअल बेस क्लास. So the duplication of the inherited members can be avoided by making common base class as a virtual base class. For example, look at this. Here grandparent class is there as a base class. Parent 1 is inheriting the grandparent. अभी virtual keyword को भूल जाओ. Public G underscore parent. Parent 2 is also deriving from the G parent. Okay, यानी grandparent. Okay. Now while दोनों क्लास डिराइव हो रहे हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2, तो दोनों में क्या लिख दिया है? वर्चुअल पब्लिक और एल्स पब्लिक वर्चुअल, दोनों में से कोई भी तरह से आप लिख सकते हो. ठीक है, आइदर और चॉइस इज योर्स. सो वर्चुअल पब्लिक ग्रैंडपेरेंट, पब्लिक वर्चुअल ग्रैंडपेरेंट. अगर कोई भी क्लास ये पेरेंट 1 और 2 से डिराइव होता है तो वो जो कॉमन प्रॉपर्टीज है उसकी एक ही कॉपी चाइल्ड के पास आएगी. ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में तो डेरिवेशन जो है पब्लिक पेरेंट 1 पब्लिक पेरेंट 2 दैट इज द सेम एज, बट जब भी ये डिराइव्ड क्लास यूज होने वाला है तब उसमें वर्चुअल लिखा जाता है. When a class is a virtual base class, the C++ takes necessary care to see that only one copy of that class is inherited. यानी पेरेंट 1 और पेरेंट 2 है तो उनमें से जो ग्रैंड पेरेंट आता है, तो पेरेंट 1 से जो आ गया है तो पेरेंट 2 से वो कंपाइलर कंसिडर नहीं करेगा, एक ही कॉपी लेगा, क्योंकि अल्टीमेटली पेरेंट 1 से लो या पेरेंट 2 से लो, ठीक है, डेटा मेंबर्स विल बी द सेम, मेथड्स आर आल्सो सेम. ओके, तो दोनों तरीके से क्यों? एक ही कॉपी होगी. Copy of class is inherited regardless of how many inheritance paths exist between the virtual base class and the derived class. जितने भी path हो between the child class and parent class. Okay, so with the help of virtual base class, they are solving the problem of duplication.
of inherited data members. Now the keyword virtual and public can be used in either order. Okay, आप virtual public भी लिख सकते हो और public virtual भी लिख सकते हो. ठीक है, so order can be off. Okay, so here is example. Here you can see the student class. We have referred the previous one. रोल नंबर, रोल नंबर की वैल्यू असाइन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस बनाए, गेट रोल नंबर, पुट रोल नंबर. नेक्स्ट इज टेस्ट क्लास. टेस्ट में क्या है, पार्ट 1 और पार्ट 2 को लेके मार्क्स असाइन किए गेट मार्क्स से और प्रिंट किए पुट मार्क्स से. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक स्टूडेंट है उसके आगे वर्चुअल लिखा है, यानी इससे भी कोई इनहेरिट कर रहा है ना मल्टीपल, तो क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर वो एक ही कॉपी जनरेट करेगा स्टूडेंट क्लास के डेटा मेंबर का. Sports class is derived from the student class and here the public student class is virtual base class. ठीक, क्यों virtual base class? कि कब जब भी ये कोई इस derived class को कोई एक्सेस कर रहा है तो वो सिंगल कॉपी जनरेट करेगा. Now the result class. Result class is derived from the test class as well as the sports class. ठीक है, तो इसके अंदर टोटल शो करने के लिए शो फंक्शन है. शो फंक्शन के अंदर में क्या किया है, टोटल कैलकुलेट किया है पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस स्कोर एंड दी रोल नंबर, मार्क्स एंड स्कोर प्रिंट करने के लिए अकॉर्डिंगली और रिस्पेक्टिव क्लासेस से रोल नंबर, मार्क्स और स्कोर हमने कॉल किए एंड एट द एंड दी स्कोर हैज बीन डिस्प्लेड. नाउ रिजल्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एस. ठीक है, तो गेट रोल नंबर, गेट मार्क्स एंड गेट स्कोर जो है इनिशियलाइज करना है वैल्यू को, रोल नंबर, मार्क्स और स्कोर की, वो हमने पास की, असाइन होगी वैल्यूज, उसके बाद कैलकुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ स्कोर, शो फंक्शन में टोटल कैलकुलेट होगा और प्रिंट होगा. सो हियर इज द आउटपुट. ओके, सो प्रीवियस हमने जो एग्जांपल देखा था, ठीक है, तो उसके अंदर ये हाइब्रिड वाला एग्जांपल है और इसके अंदर क्या है, पहला लेयर जो है वो हायरार्किकल है और दूसरा जो है वो मल्टीपल है. ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्लास के अंदर डिराइव हुआ है टेस्ट और सपोर्ट्स की प्रॉपर्टी, स्पोर्ट्स की. ठीक है, और टेस्ट और स्पोर्ट्स जो है वो कैसे डिराइव है, स्टूडेंट से, यानी रिजल्ट के पास तो कंफ्यूजन है कि रोल नंबर जो गेट करना है वो कौन करेगा, पैरेंट 1 से जाएगा या पैरेंट 2 से जाएगा, तो कंपाइलर क्या करेगा, कॉमन कॉपी बना देगा. ठीक है, तो वो उसको एक्सेस करेगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा. सो विल एग्जीक्यूट दिस एग्जांपल. Compile, build and execute. So here is the output. ठीक है, यहाँ पर मैं अगर चेंज कर दूं वैल्यू 30, पहले सब्जेक्ट का मार्क्स पार्ट 1 का मार्क्स है वो 50 है. ठीक है, तो क्या करेगा, रोल नंबर 1 है तो रोल नंबर 1 दिया तो कहाँ एस डॉट गेट रोल नंबर, एस इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट और रिजल्ट क्लास. ठीक है, लेकिन गेट रोल नंबर किसकी है, स्टूडेंट की क्लास की, तो यहाँ पे वो असाइन करेगा इसके थ्रू. ठीक है, उसके बाद गेट मार्क्स किए तो वो कॉल होगा, उसके बाद गेट स्कोर किया, गेट स्कोर में असाइन हुई वैल्यू, उसके बाद शो फंक्शन में उसका टोटल कैलकुलेट होगा. एग्जीक्यूट. तो देखो हुआ, कंपाइल नहीं किया हमने इसलिए अपडेटेड वैल्यूज नहीं लिए उससे. See this. Roll number is 1. Part 1 के marks 50. Part 2 के marks 30. Score is 7 and the total mark is 72. So this is the example of virtual base class. यानी जो भी डिराइव कर रहे हैं उसमें हम क्लास जब डिराइव करते हैं तब वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं. वो एक्सेस मॉडिफायर के पहले भी लिख सकते हो और बाद में भी लिख सकते हो. Another example of virtual base class. See the class A with one data member x और x की वैल्यू असाइन करने के लिए get और डिस्प्ले करने के लिए show फंक्शन है. A1 क्लास जो है उसमें y करके डेटा मेंबर है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए show और रीड करने के लिए get फंक्शन है. A2 के अंदर क्या है कि z है और z को रीड राइट करने के लिए get और show फंक्शंस बनाए हैं. यहाँ पर देखो A1 और A2 क्लास जो है वो हमने डिराइव किया है क्लास A से. ठीक है, ठीक है, तो क्लास A और क्लास A2, A के पास x का एक्सेस है, A2 के पास भी x का एक्सेस है. ठीक है, नाउ A12
class A12 is derived from the public class A1 and A2. ठीक है, A1 और A2 जो है उसमें से हमें Y और Z तो मिलेगा ही, लेकिन ये दोनों क्लास A1 और A2 है वो एक ही क्लास से डिराइव हो रहा है, दैट इज द क्लास E, तो वहां से x भी मिलेगा. ठीक है, तो उसकी एम्बिग्विटी सॉल्व करने के लिए जब हमने क्लास A1 और A2 को डिराइव किया क्लास A से, तब उसमें वर्चुअल बना दिया, यानी वो बन गया वर्चुअल बेस क्लास. ठीक है, तो कॉपी मल्टीपल जनरेट नहीं होगी, एक ही क्लास से रेफर होगी. आइदर क्लास A1 से वो क्लास A का डेटा लेगा या फिर क्लास A2 के थ्रू से मिलेगा. सो A12 के अंदर R एंड T करके दो डेटा मेंबर है. ठीक है, R में उसकी वैल्यू आएगी एंड T में चारों का टोटल आएगा x, y, z एंड r. ठीक है, सो द मेन फंक्शन में A12 ऐड करके ऑब्जेक्ट बनाया, गेट 3 किया, तो ये किसका गेट किया हमने A का. ठीक है, A का गेट किया यानी x को असाइन होगा, यानी सभी क्लासेस है A, A1, A2, A12. ठीक है, चारों क्लास के अंदर मेथड का नाम गेट सेम है, शो का नाम सेम है, तो अगर x की वैल्यू असाइन करनी है तो हमें r.a क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो गेट मेथड किसकी कॉल करेगा, A की मेथड कॉल करेगा. देन r.a1 स्कोप रेजोल्यूशन गेट, यानी A1 की जो गेट है यानी वो y को इनिशियलाइज करेगा. A2 r.a2 कॉलन कॉलन गेट 5, यानी A2 का गेट फंक्शन कॉल करेगा, यानी वो z की वैल्यू असाइन करेगा. देन r.get लिखा यानी रिजल्ट क्लास की जो गेट मेथड है उसके अंदर, क्योंकि r इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ A12. ठीक है, उसके स्पेसिफिक सुपर क्लास का कोई मेथड कॉल करवाना है विच इज ऑफ द सेम नेम. ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट के नेम डॉट उसका क्लास का नाम मेंशन करना पड़ेगा, फॉलोड बाय द स्कोप रेजोल्यूशन. ओके, एंड सी द r.show, लुक एट टू द रिजल्ट 18, क्योंकि हमने सिर्फ एडिशन करवा के रिजल्ट को प्रिंट किया है 18. ठीक है, सो आई विल एग्जीक्यूट दिस virtual base class. Look at this, class A, class A1, class A2 and class A12. ठीक है, यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे तो x की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी. इसका मतलब क्या हुआ, this statement and this statement is the same and get method of the A12 class will be called. Compile, build and execute. ठीक है, देखो रिजल्ट आ गया 18. अगर वैल्यू चेंज करते हैं यहाँ पर हम A1 यानी y में 14 डालते हैं. कंपाइल, build and execute. देखो 28 आ गया. So this is the example of virtual base class. यानी virtual base class क्या करता है कि जो मल्टी पाथ वाले इनहेरिटेंस यूज करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हाइब्रिड, हायरार्किकल, यानी ज्यादातर हाइब्रिड अगर होता है तो उसमें ये डेटा मेंबर की डुप्लीकेसी वाले चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो उसको सॉल्व करने के लिए वर्चुअल बेस क्लास का कंसेप्ट यूज होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास. ओके, नाउ ईच क्लास हैज its own constructor, and constructor is nothing but a member function where the name is the same as the class name and constructor do not return anything and constructor can have a multiple parameters. Okay, fine. Whenever the derived class default constructor is called, ठीक है, the base class default constructor is called automatically. यानी default constructor जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो derived class का ऑब्जेक्ट बनाते हो, यानी derived class का default constructor कॉल हुआ, that means it will automatically call execute the default constructor of the base class. If the base class has constructor with more than one arguments, then it is compulsory to have a constructor in derived class and which पास आर्ग्यूमेंट्स टू दी बेस क्लासेस. यानी अगर बेस क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसको कॉल करवाना है तो आपको डिराइव्ड क्लास में कंपलसरी उसी
आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. Normally we create the object of derived class, so it is normal to create a constructor in a derived class which pass arguments to the base class constructor. In inheritance, when base and derived class have a constructors, then first base class constructor is executed, then the derived class constructor is executed. That means दोनों क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है, derived क्लास के अंदर और बेस क्लास के अंदर. तो जब भी डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सबसे पहले वो किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, बेस क्लास का. उसके बाद डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर का स्टेटमेंट बॉडी एग्जीक्यूट होगा. इन अ मल्टीपल इनहेरिटेंस बेस क्लासेस कंस्ट्रक्टर्स आर एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर इन विच दे आर अपीयर इन द डिक्लेरेशन ऑफ डिराइव्ड क्लास. वो आपको डायग्राम में दिखाऊंगी कैसे होता है. ठीक है, मल्टीपल में मल्टीपल यानी दो क्लास से अगर डिराइव होता है, क्लास सी इज डिराइव फ्रॉम बी एंड ए, तो पहले बी का कॉल होगा, बाद में ए का कॉल होगा, बाद में सी का खुद के कंस्ट्रक्टर का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. इन मल्टीपल इनहेरिटेंस द कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस. ओके. द कंस्ट्रक्टर फॉर वर्चुअल बेस क्लास इज इन्वोक्ड बिफोर एनी नॉन वर्चुअल क्लासेस. यानी कोई एक वर्चुअल क्लास है और दूसरा नॉन वर्चुअल क्लास है, तो कहीं वो सीक्वेंस में कहीं पे भी वर्चुअल क्लास को मेंशन किया है तो सबसे पहले वर्चुअल का वो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करेगा, देन इट विल एग्जीक्यूट दी कंस्ट्रक्टर ऑफ दी अदर बेस क्लासेस. C++ uses initialization list in the constructor function to initialize the data members. वो प्रैक्टिकली पता ज्यादा चलेगा कि आपको उतने सफिशिएंट डेटा मेंबर्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज पास करनी पड़ेगी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तब. लुक एट दिस. देखो डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 जो है वो बेस क्लास 1 है का है, तो बेस क्लास 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और आर्ग्यूमेंट वो पास कर दे. आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2 जो है वो बेस क्लास 2 का है, तो उसमें वो पास करके उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है. तो सेम वे आर्ग्यूमेंट n है वो बेस क्लास n का है, तो उसमें पास करके वो बेस n का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया है. ठीक है. और उसके बाद जितने भी लिस्ट आएंगे वो खुद के डिराइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर के डेटा मेंबर होंगे. ओके. सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ डिफाइनिंग अ डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर. हियर यू कैन सी दिस एग्जांपल. ओके. क्लास B is derived from the class A. So first of all it will execute the constructor of a base class A. बाजू में ऑर्डर दिया है मैंने. उसके बाद बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. अभी क्लास ए कॉलन पब्लिक बी पब्लिक सी. ठीक है. तो उसके अंदर क्या होगा कि पहले बी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद ए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. नाउ क्लास ए पब्लिक बी वर्चुअल सी. ठीक है. तो उसके अंदर क्या बोला मैंने प्रीवियस स्लाइड में अभी बोला कि सबसे पहले वर्चुअल कहीं पे भी लिखा हो, पहले वर्चुअल बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी बेस क्लासेस है उसका एग्जीक्यूशन होगा और उसके बाद डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन होगा. तो पहले सी एग्जीक्यूट होगा, फिर बी एग्जीक्यूट होगा, फिर ए एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. नाउ दिस अनदर डायग्राम सेज अबाउट द ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस. क्लास सी है, उससे क्लास बी डिराइव हुआ और उससे क्लास ए भी डिराइव हुआ. ठीक है. तो कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूशन कैसा रहा, पहले सी का एग्जीक्यूट होगा, फिर बी का एग्जीक्यूट होगा और फिर ए का एग्जीक्यूट होगा. लेकिन जब डिस्ट्रक्टर की बात आती है तो वो पूरा उल्टा है. ठीक है. जो लेटेस्ट डिराइव्ड क्लास है उसका पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद वो जिससे डिराइव हुआ है उसका डिस्ट्रक्टर आएगा, उसके बाद जिससे वो डिराइव हुआ है उसका जो बेस क्लास है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर आएगा. ठीक है. तो पहले ए का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर बी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और उसके बाद सी का डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. ठीक है. फाइन. यानी कंस्ट्रक्टर कॉलिंग में टॉप टू बॉटम जाना है और डिस्ट्रक्टर कॉलिंग में बॉटम टू टॉप जाना है. Now see, here the parent class. Parent class का constructor parent है inside the base class. Now this is the child class. ठीक है. तो child class जो है उसका constructor में inside सब class लिखा है
ठीक है। नाउ आई एम क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड, तो क्या होगा, जैसे ही चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। लेकिन चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में मैंने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया है, वो ऑटोमेटिकली पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल करेगा, उसके बाद चाइल्ड का खुद का जो कंस्ट्रक्टर है उसके जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी आउटपुट में क्या आएगा, इनसाइड बेस क्लास देन इनसाइड सब क्लास, सीधा आउटपुट इनसाइड बेस क्लास इनसाइड सब क्लास। I will execute this here, parent class, then this is a child class, and this is your object creation. Fine. Compile, build, and execute. Now look at this. Inside the base class, inside subclass. Okay. तो पहले क्या हुआ, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा obj, तो कहाँ जाएगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी यहाँ पर आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आता है तो ऑटोमेटिकली वो उसका पेरेंट कौन है, पेरेंट, तो उसका कंस्ट्रक्टर जो ये है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में ये जो लिखा है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसलिए पहले वो क्या दिखा रहा है, इनसाइड बेस क्लास देन इनसाइड सब क्लास। सो दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिराइविंग। Next example is parameterized constructor. If you are having a parameterized constructor, now then you are supposed to call it explicitly within the derived class constructor. Okay? Look at this. Base underscore m, bm is the data member. उसकी वैल्यू असाइन करने के लिए बेस उसका कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू वैल्यू असाइन की है, यानी x जो है वो किसको असाइन होगा, bm को शो करने के लिए शो bm करके फंक्शन बनाया है। बेस वन को डिराइव किया है किससे, पब्लिक बेस अंडरस्कोर m से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी बेस वन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो दो डेटा मेंबर देगा, y जो है वो बेस वन के b1 के लिए है, लेकिन x जो पहला पैरामीटर है वो किसके लिए है, वो हमने ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा है ना बेस वन का, उसके बाद कॉलन करके हमें पेरेंट क्लास दैट इज द बेस अंडरस्कोर m का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और उसमें x पास करना है, तब जाके बेस अंडरस्कोर m कंस्ट्रक्टर है वो बेस अंडरस्कोर m क्लास का वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, बेस टू इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस वन, ठीक है, एंड बेस वन इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेस अंडरस्कोर m, यानी बेस टू के कंस्ट्रक्टर में कितनी वैल्यूज आनी चाहिए, बेस टू के डेटा मेंबर b2 के लिए, बेस वन के डेटा मेंबर b1 के लिए, और बेस bm डेटा मेंबर के लिए z के लिए एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x, y एंड z, x इज फॉर बेस अंडरस्कोर m यानी bm के लिए, y इज फॉर दी कंस्ट्रक्टर बेस वन, यानी बेस वन का कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल करते तो दो वैल्यूज चाहिए दैट इज x एंड y, वो हमने पास की, ठीक है, और z असाइन होगा b2 को और शो b2 से उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी है, ठीक है। तो उसको प्रिंट करने के लिए देखो शो b1 भी यहाँ पे कॉल किया है ना, क्योंकि वो पेरेंट का है, पेरेंट से डिस्प्ले करवाना है, पेरेंट में उसका पेरेंट शो b1 है, शो b1 में क्या किया, शो bm यानी कैरी फॉरवर्ड करा है, ठीक है। देखो यहाँ पे बेस 2 का ऑब्जेक्ट बनाया, बेस 2 में वैल्यू 1 2 3 दिया, तो 1 2 3 में 1 x को जाएगा, 2 y को जाएगा, 3 z को जाएगा, ठीक है। तो वो कंस्ट्रक्टर पे गया, तो 1 2 3 जो आया है तो पहले दो पैरामीटर किसके लिए, उसके आगे वाले जो पेरेंट क्लासेस है उसके लिए, तो x एंड y को बेस 1 को पास कर दिया। अभी बेस 1 पे आते हैं तो बेस 1 को क्या पता है, खुद का एक ही डेटा मेंबर है दैट इज b1, दैट इज द लास्ट पैरामीटर ऑफ y, तो x किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x bm of a bm underscore m class. So I'll execute this. See this bm underscore class, ठीक है। फिर बेस 1 क्लास, इसमें एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे b2 किया, बेस 2 का ऑब्जेक्ट बनाया b2, यानी इसके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा, ठीक है, इसके कंस्ट्रक्टर पे जाएगा। b2 के कंस्ट्रक्टर में क्या दिया है, 3 वैल्यूज दी है x y एंड z, ठीक है।
लेकिन B2 का जो डेटा मेंबर है वो एक ही है, तो 3 वैल्यू का क्या करेंगे, उसके जो पेरेंट्स है उसको भेजनी है, उसको भेजने के लिए उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो इसका पेरेंट कौन है, बेस 1, तो बेस 1 में हमने x एंड y भेज दिया, तो जैसे ही भेजा तो बेस 1 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो बेस 1 के कंस्ट्रक्टर में 2 वैल्यूज है x एंड y, लेकिन बेस 1 जो है उसका डेटा मेंबर तो B1 ही है सिर्फ, तो वो तो y वैल्यू B1 को असाइन हो जाएगी। पहला जो पैरामीटर है दैट पैरामीटर इज द पेरेंट ऑफ द बेस 1 क्लास, दैट इज द बेस अंडरस्कोर m। तो x पास किया इससे, तो जैसे ये लाइन लिखेंगे यानी सिंटैक्स क्या है, डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर फॉलोड बाय द कॉलन एंड फॉलोड बाय द पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो x पास किया तो अल्टीमेटली x क्या होगा, bm को असाइन होगा। तो एक हायरार्की में जाएगा कैरी फॉरवर्ड करते करते। दिस आगे वैल्यू 1 2 3, bm की वैल्यू 1, b1 की 2 एंड b2 की 3। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द इनहेरिटेंस, यानी डिराइव्ड क्लास में कैसे कंस्ट्रक्टर यूज करना है उसकी बात है, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेनरशिप or a member classes, nesting of classes. Okay, now here you can see the various images where the class alpha is there, class beta is there, but in class gamma what is happening, alpha a and beta b, ठीक है, यानी गामा क्लास के अंदर एज अ डेटा मेंबर दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, यानी a इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अल्फा क्लास, b इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बीटा क्लास, ठीक है। तो अभी उसके कंस्ट्रक्टर तो अलग अलग हो गए, b का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, a का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो क्या करेंगे, तो गामा का सेकेंड इमेज में देखो, गामा का जब कंस्ट्रक्टर हुआ तो वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में से आर्ग्यूमेंट 1 जो है वो a के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कॉमा करके आर्ग्यूमेंट 2 लिस्ट है वो b के कंस्ट्रक्टर में जाएगा, यानी आर्ग्यूमेंट लिस्ट फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ a ऑफ अल्फा क्लास एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2 is for the b object and b is the object of beta class, ठीक है। तो ऐसे उसका कंस्ट्रक्टर फॉलो करना है जब हम डिफरेंट डेटा मेंबर्स के तरीके से हम दूसरे क्लासेस के ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल नीचे टीचर्स में एग्जांपल दिया है कि गामा में x y z पास किया, ठीक है, x इज फॉर a ऑब्जेक्ट, y z फॉर द b ऑब्जेक्ट, ठीक है। So inheritance is a mechanism if we deriving certain properties of one class into another. C++ supports another way of inheriting properties of one class into another class. Okay, so class can contain objects of other class as its members, and that is known as the containership. In example, gamma class contains the objects of alpha and beta class. This whole concept is known as the containership or the nesting of classes. So nested object is created in 2 steps. Member objects are created using their respective constructors and then ordinary members are created. Okay. It means constructors of all the member objects should be called before its own object body is executed. ठीक है, एंड दिस इज डन बाय इनिशियलाइजेशन लिस्ट इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द नेस्टेड क्लास, यानी गामा का जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो साथ में वो क्लास के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है अदर क्लासेस के, उसके कंस्ट्रक्टर भी कॉल करने ही पड़ेंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। लेट अस सी द एग्जांपल, अल्फा क्लास इज देयर, ओके, एंड अल्फा की कंस्ट्रक्टर में x की वैल्यू है, बीटा क्लास इज देयर, तो बीटा के कंस्ट्रक्टर में y एज अ वैल्यू है जो b को असाइन होगी। गामा क्लास के अंदर अल्फा a1, बीटा bt एंड पब्लिक में देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं गामा इंट x एंड y, तो x किसको जाएगा al के अंदर, तो al यानी कौन क्या है, al कौन है, अल्फा का ऑब्जेक्ट, और अल्फा का कंस्ट्रक्टर में वो x की वैल्यू पास होगी। सेम वे कॉमा करके bt इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ बीटा क्लास, यानी बीटा क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है उसको कॉल करके वो y पास करेगा, ठीक है। और यहाँ पर उसके में a और b की दोनों की वैल्यू प्रिंट की है, यहाँ पर a इज फ्रॉम अल्फा, b इज फ्रॉम बीटा।
मेन फंक्शन के अंदर गामा जी करके 1 2 बनाया, तो 1 2 जो पास होगा गामा के कंस्ट्रक्टर में, तो 1 पास होगा एल के ऑब्जेक्ट में, 2 पास होगा बीटी के ऑब्जेक्ट में, एंड बोथ ऑफ देम आर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर ऑफ अल्फा एज वेल एज बीटा रेस्पेक्टिवली. Look at the answer. A is 1 and B is 2. Okay. So now the thing is, what is the difference between inheritance and containership? So inheritance is the ability for a class to inherit properties and behavior from the parent class by extending it. यानी behavior हम properties behaviors हम extend करते हैं parent class से. Whereas containership is the ability of a class to contain the objects of different classes as a member data. ठीक है? If a class is extended, it inherits all the public and protected properties, behaviors, and those behaviors may be overridden by the subclasses. यानी वो जो behavior है उसके साथ हम manipulation override करके body statement change करने हैं with the help of polymorphism, that can be a change, that can be done. Whereas in containership, if a class is contained in another, the container does not get the ability to change or add a behavior. यानी हम class की properties में कुछ change भी नहीं कर सकते और add on भी नहीं कर सकते. That is the difference between the inheritance and containership. Inheritance represents an easier relationship in OOP concepts, whereas containership represents the hazard relationship in a OOP. ठीक है, यानी दिस क्लास इज हैविंग ऑब्जेक्ट ऑफ अदर क्लासेस, यानी वो हैज अ रिलेशनशिप ही है, यानी वहां पे कोई चेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं, उसको यूज कर सकते हैं सिर्फ. Whereas इनहेरिटेंस जो है उसमें जो मेथड हमने गेट वाला एक फंक्शन देखा था, सभी में गेट लिखा था, तो उसको मॉडिफाई करना है तो वो हम कर पाए, यानी बिहेवियर चेंज कर पा रहे हैं उसका. ठीक है, यानी इनहेरिटेंस गिव्स द चांस टू चेंज, मॉडिफाई और ओवरराइड द बिहेवियर्स ऑफ द parent class into the subclasses. That means it's a easier relationship, and containership is having a hazard relationship. Okay, so note down the questions related to all the topics which are related to inheritance, types of inheritance, virtual base class, containership, constructor and derived classes, and whatever your doubts, we are going to discuss it in detail when we do the meeting. Okay. And thank you very much for watching this video.